بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں یہاں پہ زیادہ لمبا چوڑا تعارف پیش نہیں کروں گا، آپ کو سیدھا ویڈیو کی طرف لے کے چلوں گا جہاں آپ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب سن سکیں گے کہ ایسا خطاب ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر رلا دینے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کربلا پر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بچوں کو قربان کیا، اپنے ساتھیوں کی قربانی دی، تقریباً 70 سے زائد ساتھی وہاں پہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ کس طرح مدینہ شریف واپس آئیں، تو یقیناً یہ بہت ہی ایک دکھ بھرا واقعہ ہے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر قاری حنیف ملتانی کا ہم یہ بیان سنتے ہیں۔ تو محرم سن 1400 ہجری میں یہ ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آج سے 45 سال پہلے کا یہ بیان ہے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی قبر کو منور کرے۔ تو چلے سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان۔ 15ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے۔ خداوند کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس صدی کو نیک فعال ثابت کرے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ دن اشار و قربانی کے ہیں۔ 18 تاریخ کو امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ علماء اکرام نے لکھا، جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، نوح علیہ السلام اور ان کے رفقاء کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا، پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے، فرعون غرق ہوا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، دیانت و شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے، دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان ذبح تو کرا دیا، مگر نانا کے دین پہ آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ شعبان کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اپنے منہ مبارک میں
کھجور چبا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی. ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، بہت زیادہ پیار فرماتے. تھوڑی سی عمر کے بچے تھے، تربیت کی. نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں. مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں. نواسے رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکالی. فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے میری آل کے لیے جائز نہیں. ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا. فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والے، ابھی آگوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے؟ تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، لوگ دغاباز ہیں، فریبی ہیں. فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو، اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ کو ماروں گا، حد المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل رواں دواں میدان کربلا میں پہنچ گئے. حور آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا. ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی، کتنے کریم ہوتے ہیں. نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھیں گے. ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے؟ نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے. پانی نہیں ہے وضو کے لیے. حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا. تم پانی لو، وضو کرو، خدا کا فرض پورا کرو، ہماری خیر ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی. اگلی روز دیکھا عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر کے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو، نماز کے لیے دو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو. مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. واہ حسین، تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن کے لیے مانگا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں.
रात कट गई। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह उठते खुतबा इरशाद फरमाया, अगर वो खुतबा पहाड़ों को देते रेजा रेजा हो गया होता, अगर वो खुतबा जमीन को देते फट जाती, अगर वो खुतबा आसमान को देते चिर जाता। फरमाया, लोगों, इस वक्त अल्लाह की जमीन पे मेरे सिवा नबी का कोई नवासा नहीं। और लोगों, मेरा हसब नसब पहचानो, मैं फातिमा ज़हरा का लगते जिगर हूँ, मैं शेर खुदा का नूरे नजर हूँ। और लोगों, मैं नबी की गोद में खेलने वाला हुसैन हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया? फरमाने लगे, सारी उम्र में मैंने कभी नमाज कज़ा नहीं की, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने कत्ल किसी को नहीं किया, मैं बेरहम नहीं, मैं जालिम नहीं। और लोगों, तुम पे मेरा खून बहाना कैसे रवा हो जाएगा? बार बार समझाया, बार बार फरमाया, मगर शर्म न आई। जालिमों ने एक भी न सुनी, एक पे भी कान न धरा। ये कौन है? फरमाया, ओ लोगों, कुछ तो सोचो, मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हारा नुकसान क्या किया? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 शर्तों में से एक सोच कर लो, या तो मैं जहाँ से आया हूँ वापिस लौट जाऊँ, और या मुझे किसी सरहद पर भेज दो, मैं मुजाहिद हूँ, मैं शेर खुदा का फर्जंद हूँ, मैं फातिमा ज़हरा का लगते जिगर हूँ, इमामुल अंबिया का नवासा हूँ, मैं जिहाद में मशगूल हो जाऊंगा। और या फिर वक़्त के हाकिम से, यजीद से मेरी मुलाकात कराओ। तीनों में से एक ना मानी और कहने लगे कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, यही से बैत का ऐलान हो, तस्लीम करो। फरमाया, फिर मैं बुज़दिलों की औलाद नहीं, मैं न मर्द नहीं, मैं बुज़दिल नहीं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से तो सिर्फ एक बात है कि यहाँ खड़े खड़े बैत का ऐलान करो, वरना तैयार हो जाओ। लोगों से पूछो जो कहते हैं कि तकिया करना जायज है, हुसैन ने तकिया क्यों ना किया? अगर हुसैन तकिया बाज होता, यहाँ जान बचा जाता, और अपनी बचाता, अपने मासूम बच्चों की जान बचाते। न खुद हुसैन तकिया बाज है, न हुसैन तकिया बाज की औलाद है। मुनाफकत जो इस घर के जिम्मे लगाई जाती है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खामोशी से अपना वक्त गुजारा। मैं नहीं मानता शेर खुदा हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो, हुसैन हो, फातिमा का लाल हो और दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और हो, मैं नहीं मानता। अगर ये घर भी मुनाफकत करता है, फिर सदाकत कहां से आएगी? सदाकत आपको मिलेगी कहां? अगर नबी का घराना ही नऊजुबिल्लाह बिगड़ जाए, फिर तुम्हें दीन कहां से मिलेगा? फरमाया, नहीं नहीं, यह गर्दन कट तो सकती है मगर बातिल के सामने झुक नहीं सकती। तुम मेरा सब कुछ कुर्बान होता देख सकते हो, मेरा सब कुछ काम तमाम कर सकते हो, लेकिन मेरी गर्दन अल्लाह के दीन के लिए है। अगर कटेगी तो उसकी राह में कटेगी, मैं बातिल के सामने झुकने वाला नहीं। खुदा की कसम, क्या वक़्त होगा, आसमान के सितारे चांद सूरज सब देख रहे हैं बगैर किसी वजह के और बगैर किसी इस्तिहाल के। खानदाने नबूवत को मिटाने का प्रोग्राम है, मशाले नबूवत को बुझाने का प्रोग्राम है। और लोगों, कितने संग दिल थे वो लोग जिन्होंने गुलशन मोहम्मद को उजाड़ा। शमे रिसालत की कंदील को गुल करने की कोशिश की, जिन्होंने न छोटों पे तरस खाया न बड़ों पे तरस खाया। अरे बराबर में दरिया बह रहा है मगर पानी बंद है। घोड़ा पानी पी सकता है, दरिया में से कुत्ता पानी पी सकता है, दुनिया भर के जानवर पी सकते हैं। जालिमों ने ऐसी सख्ती की, फातिमा ज़हरा का खानदान पानी नहीं पी सकता।
मौसम है, लू चल रही है, शिद्दत की धूप पड़ रही है, मैदान करबला की सर्रात एटम बम का काम कर रहे हैं। हुसैन प्यासा, हुसैन के लगते जिगर प्यासा, हुसैन का सारा लश्कर प्यासा। 3 दिन गुजर गए, पानी की बूंद न देखी। काम शुरू हो गया। अभी शुरू हुआ ही था कि हुर बिन यजीद खामोश खड़ा हुआ देख रहा है। लोगों ने पूछा क्या कर रहा है? कहने लगा जन्नत का इंतखाब कर रहा हूं, किस तरफ है। घोड़े को एड़ लगाई और फौरन हुसैन के कदमों में आ गिरा। कहा मैं गुज़िश्ता अपनी कार्रवाई पर नादिम होता हूं और नवासे रसूल में जुल्म होता आप भी देख नहीं सकता। जरा सी ईड़ लगाई, हुसैन के कदमों में आके माफी मांगी, इनकी तरफ से हिमायत में लड़ता हुआ शहीद हो गया। सारी दुनिया के लोग मानते हैं हुसैन की हिमायत में शहीद हुआ जन्नती है और 4 मिनट की संगत और बिन यजीद को जन्नती बना सकती है। मैं कहता हूँ सारी उम्र की संगत अबू बकर सिद्दीक को और सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नती क्यों करना बनाएंगी? कासिम इब्ने हसन को शहीद होते देखा, बरछोड़ नेज़ों से जख्मी होते देखा, शहीद हो गए। उठा के लाके खैमे के पास रख दिया। अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद होने को है, गाजी अब्बास शहीद हो गए। तमाम का तमाम ढेर लगा हुआ है। खुदा की कसम हुसैन के कलेजे से पूछो, हुसैन के जिगर से जाके पूछो, तुमने सारे खानदान का ढेर लगा हुआ क्यों कर देखा? हुसैन घबराया नहीं, रोया नहीं। हुसैन अल्लाह मियां को मुश्किल कुशा मानता है। खून की चुल्लू भरकर आसमान की तरफ फेंकी और मेरे परवरदिगार देख नहीं रहा क्या बन रही है। आवाज आई हुसैन तेरे दर्जे बुलंद हो, मेरी तौहीद का मसला साफ हो, मकाम तेरे ऊंचे हो, लोगों को पता तो चले कि मैं भी हूँ, मेरे बगैर कोई नहीं। वरना तेरी शराफत पे जमीन नाज करती है, तेरी शराफत पे दुनिया नाज करती है। इसलिए कि आज भी और पहले भी उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं जब तक आले मोहम्मद पे दरूद न पढ़ो। फर्ज नमाज मुकम्मल नहीं, नफल नमाज मुकम्मल नहीं, वाजिब नमाज मुकम्मल नहीं। क्यों? इसलिए कि पढ़ो हर दम दरूद उस पर, सुजात हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। बिल्कुल आखिरी वक्त है। हुसैन कितना बड़ा नमाजी है और लोगों जरा कलीजे पे हाथ रख के सोचो, छोटा बड़ा तमाम का तमाम तलवारों तीरों से जख्म खाकर सो गया है। और मौलाना आजाद लिखते हैं हुसैन के बदन पे 31 जख्म तलवारों के, 33 जख्म तीरों के, 80 के करीब जख्म खाकर नमाज की तैयारी कर रहा है। इस वक्त में भी नमाज को नहीं भूलता। पानी पीने के लिए नहीं। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मरहूम ने भी लिखा है जब हुसैन को प्यास ने चूर चूर कर दिया, पानी पीने के इरादे से दरिया में पहुंचे, करीब पहुंचे, पानी पीने का इरादा किया, एक जालिम ने तीर मारा, दोनों लबों में से निकल गया। वापिस आए, नमाज का प्रोग्राम है, सैयद नमाज के बगैर रह नहीं सकता। हुसैन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होकर सर देना चाहता है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन ने इश्क की नमाज पढ़ी और ऐसा सर झुकाया क़यामत आ जाएगी। आज तक हुसैन ने सर नहीं उठाया, आज तक हुसैन ने अपना सर नहीं उठाया, सजदे में रख दिया। ऐ मेरे मौला, मैं तो तेरे दरबार में ये सर पेश करके दुनिया से रवाना हो रहा। सर दे दिया, जालिम आगे बढ़ा।
80 के करीब जख्म पहले थे, शर्तन से अलग कर दिया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, उनको बेइज्जत किया गया। आखिरी वक्त में हुसैन को देखा, परेशान है और चिल्लाए हैं। वो हुसैन जो सारे खानदान को देने के बाद नहीं चिल्लाया, एक वक्त ऐसा आया कि हुसैन भी चिल्ला पड़ा, जबकि जालिमों ने अपने घोड़े मस्तूरात के खैमों की तरफ मोड़े। फरमाया है किधर जाते हो, ये नवासे रसूल का खानदान है, खैमों की तरफ ना जाओ, फातिमा की बेटी ज़ैनब अंदर मौजूद है, ज़हरा की बेटी ज़ैनब अंदर मौजूद है, सकीना मौजूद है, खबरदार जब तक मुझे सांस आ रहे हैं तुम काली कमली वाले के हरम की तरफ ना जाओ। कितना गैरत वाला हुसैन होगा, सारे खानदान को देख करके ना रोया ना चिल्लाया। जब आबरू का मसला आया, इज्जत का मसला आया, आखिरी वक्त में भी हुसैन खामोश न रह सका। आज औरतें हुसैन के मातम का नजारा करती हैं, देखने जाती हैं, कोठों पे चढ़ती हैं। हुसैन ने अपनी औरतों की हिफाजत के लिए इस कदर आखिरी वक्त में भी चिल्ला के फरमाया, खबरदार अगर किसी ने इधर के रुख किया। पता चला गैरत बहुत बड़ी चीज है। हुसैन का सर उतार कर जुलूस बना के चले, नेज़े पे लटका के चले। कौन? हुसैन जो सारी उम्र कुरान पढ़ता था, वो हुसैन जिसने नमाज कभी कज़ा ना की। सैयदना हुसैन का सर लेके चले, जिन्होंने बुलाया था वही सर उतार के लेके चले हैं। दगा किया, फरेब किया, ठगी मारी, सर लिए चल रहे हैं, बाजार में जुलूस बना के चल रहे हैं। बस वहां से मातम शुरू हुआ, कूटना पीटना शुरू कर दिया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में सर जाके रख दिया। उस कमीने ने हजरत हुसैन के मुंह मुबारक पे कमची मारी। इस मुंह से मुकाबला करने आया था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़ा सहाबी है, फौरन खड़े हो गए। अरे ईमान वाला कब चुप रह सकता है? खड़े हो गए, फरमाने लगे, जालिम कमीने, जिन लबों को तू कमची मार रहा है, मैंने एक दफा नहीं हजारों मर्तबा इन लबों को मुंह में लेकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते देखा है। हुजूर इस पेशानी पे बोसा दिया करते थे, हुजूर इस मुंह पे बोसा दिया करते थे। कहने लगा, मैं तेरे बुढ़ेपे का लिहाज करता हूँ वरना कत्ल करा दूंगा। फरमाया, जब तूने रवाते रसूल को उजाड़ दिया तो मेरा क्या लिहाज करेगा? इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर मस्जिद में जाके खुतबा देने लगा। देखो अल्लाह का शुक्र है हमें फतह हुई। एक नाबीना बूढ़ा है, वो खड़ा होकर कहने लगा, इसने कहा ना हमें फतह हुई हुसैन के मुकाबले में। नबीना खड़ा होकर कहने लगा, बड़े खोजी होते हैं ये नबीने लोग, पहले पता लगा लेते हैं। फरमाया, बाप को बता तेरा कौन है? वो हरामी पिल्ले, तुझे फतह कैसे हो गई हुसैन के मुकाबले में? तुझे मुकाबले में फतह नहीं हो सकती। वो जन्नत में पहुंचे तो जहन्नुम में जाएगा। इसी सर को साथ देकर जुलूस बनाकर दमिश्क भेजा यजीद के पास। अल्लाह गनी, वहाँ पर सरदार लोग बैठे हैं, बड़े बड़े आदमी बैठे हैं। जब नवासे रसूल के खानदान को, फातिमातुज़ ज़हरा की बेटियों को लाया गया, ऊंटों से नीचे उतारा गया। जब मदीने से चली सब कुछ पल्ले था, आज सब कुछ खत्म है। एक हबशी सरदार बोल उठा, कहने लगा, ये जो सकीना छोटी लड़की है इसे मेरे हवाले करो, नऊज़ बिल्लाह ये मेरी है। हज़रत ज़ैनब फौरन बोल उठी, फरमाने लगी, कुल्लु कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़िताल।
औरों के बारे में क्या ख्याल रखते हो? मौलाना आजाद लिखते हैं, इब्ने ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कत्ल करना चाहता था। हज़रत ज़ैनब पुकार उठी, नबी का निशान मिटाना चाहता है, मगर तारीख शाहिद है कि हज़रत ज़ैनब ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में भीख ना मांगी, आसमान की तरफ चेहरा उठाया और दुआ मांगी, इलाही मेरे नाना के खानदान को आबाद रख। सारा चला गया, एक ये मासूम बच्चा तुझसे मांगती हूँ। अल्लाह से मांगा ज़ैनब ने। कूफे के गवर्नर जैसे जालिम बादशाह से भीख ना मांगी। कितना जुर्त वाला खानदान है, और ये औरत कितनी खानदान, कितने ऊंचे खानदान की है। कहती इब्ने ज़ियाद तुझसे कुछ नहीं मांगती, और मेरे मालिक, मेरे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान बाकी रख। ये छोटा सा ज़ैनुल आबिदीन बच्चा है, इसकी भीख तुझसे मांगती हूँ। हुसैन से नमाज का कैफ मालूम कर, हुसैन से नमाज की लज्जत मालूम कर, सर कटाने की लज्जत मालूम कर। काफिले को मदीने रवाना कर दिया, अच्छा आदमी साथ कर दिया जो हिफाजत करता हुआ साथ ले जाए। मदीना मुनव्वरा काफिला पहुंचा, खिदमत की, बेचारे ने पानी पिलाया, नमाजें पढ़वाई। हज़रत ज़ैनब तो मदीने में पहुंचने से पहले कोहराम मिट गया। आज लूटा हुआ काफिला आ रहा है, जिनके पल्ले एक भी मर्द नहीं। हज़रत ज़ैनब ने अपने सोने के कंगन उतारे और फरमाया, हाफिज काफिला को तुमने हमारी खिदमत की है, इस वक्त मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं, मैं ये तुझे इनाम देती हूँ। मेरे तेरे जैसा होता है ना, फौरन कहता जज़ाकल्लाह जी, ये तो ਤੁਹਾਡਾ तबर्रक है ना, लाओ तबर्रक। कोई बैकोल तो ना छिन्नू है, लेकिन ये ਤੁਹਾਡੇ घर का तबर्रक है ना, थोड़ी निशानी मेरे कोल रह जाती, लाइए जल्दी दीजिए। मेरे जैसा होता तो यूं कहता, अच्छा जी आपको रसीद काट देते हैं मदरसे की। अजब जहन है हमारे। मगर वो मुहाफिज मदीने का था, कहने लगा ज़ैनब चांदी का इनाम लो कल खत्म हो जाएगा, सोने का इनाम लो परसों खत्म हो जाएगा, मैं ये नहीं लेता और इनाम छोड़ूंगा भी नहीं। मुझसे वादा करो, कल कयामत में जब मेरी रूह सियाही मुझे फंसाएगी, मेरी बदअमली मुझे कयामत में फंसा के खड़ी कर देंगी, जब मेरा कोई ना होगा, पुरसान हाल कोई ना होगा, ओ ज़ैनब वादा करो उस वक्त नाना से मेरी कहकर शफाअत करा देना। ये मेरा इनाम है और मैं ये इनाम आपसे लूंगा। क्या इंतखाब किया है इनाम का। तो खुदाबंद करीम की करोड़ रहमतें नाजिल हो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे, सारे खानदान पे। अशूरे का दिन तिलावत का दिन है, इस्तिग़फ़ार का दिन है, क़यामत कायम होने का दिन है। तो दोस्तों आपने ये बयान सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सच्चा मुसलमान बनाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब कराम, अहले बैत रसूल के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग इसको देख सकेंगे और यकीनन आप भी इस अजर अज़ीम में शरीक होंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।